Hello student. Now in this lecture we are going to start new uh, subsidiary book, that is the petty cash book. Here information is now on your screen. Actually petty cash book, it is maintained by the petty cashier, and this cash book is being used for the small expenses. In large business organization, the accounting work is divided systematically. There are various departments spending small amount on stationery, postage and telegram, refreshment, carriage, etc. Now here information it is given very clearly that this petty cash book is for small expenditure, small amount of expenditure which is being spent on stationery, purchase of stationery, payment for postage and telegram, refreshment, carriage, etc. Means these are some example which is given in textbook, that these are the accounting heads which demand a small expenditure. And one thing I would like to tell you, this expenditure is up to within three figures like 200, 300, 400, 500, like that. So here information is that the person maintaining petty cash book is known as petty cashier. जो petty cash book बनाता है is called by the name of petty cashier. Actually in organization there is head cashier and petty cashier. Head cashier, he looks the major expenses, and petty cashier looks the small expenses, and head cashier remit the amount to petty cashier for expenditure. Here it is given, the petty cashier is given certain amount by the main cashier, means that is the head cashier. Main cashier means head cashier, as an advance. Actually this amount it is being given by the head cashier to petty cashier in advance basis at the beginning of every month, and from that amount, from that cash, the petty cashier release the small expenses, amount for small expenditure. He remit the money for small expenses, and at the beginning of every month the head cashier provide cash to the petty cashier for maintaining the petty cash book or for handling the small expenditure, which all petty expenses are paid and recorded by the petty cashier. Actually this petty cash book is prepared by the petty cashier. So the petty cashier, he looks the petty expenses and he prepares the petty cash book. The term petty is derived from the French word, that is the petit, which means small. So this book is maintained for recording small expenses. This is important thing, that petty cash book is prepared only for recording of small expenditure, small expenses, which cannot be paid by check. Actually the some routine expenses are there in the organization. Actually they are for small amount expenditure and they cannot be transact through the bank. Actually the small expenses is being made by the petty cashier through cash only. So here the information given, the petty cash book, it is having two types: simple petty cash book and analytical columnar petty cash book. Now what is the simple petty cash book? Simple petty cash book is divided in two sides, that is receipt side and payment side.
Now, earlier we studied the cash book like that. Here in the petty cash book there is two side, receipt side and payment side, and this is not new for us because earlier we studied the cash book and there was also two side, receipt side and payment side. Actually, debit side is called as the receipt side and credit side is called as the payment side. Actually, what is the difference between the cash book and petty cash book? In simple petty cash book and simple petty cash book, in receipt side there may be only one or two, only one two receipts may be there, and remaining there will be payment. So that is what difference between the cash book and the petty cash book. Cash or check received from head cashier is recorded only. Receipt side normally not 100% but 99%, one receipt or two receipt or three receipt may be there. The first important receipt, that is being petty cashier received the money from head cashier for remitting the petty expenses. So the cash or check received from head cashier is recorded in the column of amount received, and the petty expenses paid are recorded in the amount column paid. So whatever money petty cashier received from the head cashier, it is going to be recorded to the receipt side, amount received, and whatever petty cashier is going to release the payment for petty expenses, and that is going to be recorded in the paid column. So transaction recorded in simple petty cash book are to be posted in respective expenses in ledger. And suppose if there is being asked to prepare the ledger only, then we have to require to prepare the ledger. Otherwise, the transaction whatever is being recorded in petty cash book, they are going to be recorded to their respective ledger. This require additional time and labor, therefore business firm do not use simple petty cash book. Normally in our examination also simple petty cash book is not being asked, but it is quite important to have the knowledge about the simple petty cash book. So now there is the format. Now below there is the format of the simple petty cash book. Now the information is given from the following transaction prepare simple petty cash book. Now transaction is there, date, details and amount is given there. On 1st Jan received from head cashier rupees 1200, and on 4th Jan paid telephone charges rupees 193, paid for mobile charges 57, purchase office files 125, give tip to peon 40, sale of old newspaper. Actually this 16th will come to the receipt side, and this received from head cashier first will also come to the receipt side, and whatever payment is there, telephone charges, mobile charges, purchase office file, give tip to peon, all these are the payment. Give advance to sweetie, paid packing charges, paid for advertisement, paid for cleaning charges, gave donation, purchase revenue stamp, all these are the expenditure. So all expenses will go to the expenditure side. All these expenses will go to expenditure side. So receipts are only two, that is 1260, means total receipt is the 1260, and the others are the expenditure.
Now here simple petty cash book it is given. Now how we have to prepare the simple petty cash book from the given the transaction. Just now I told you these are the different transaction. Now the column for simple petty cash book, the first column is the amount received, जो भी अमाउंट मिला है, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो यहाँ पे आएगा. देन डेट कॉलम इज देयर. दिस डेट मीन्स on the particular date the transaction, on the particular date the transaction is given, that will come to the particular in particular what is the expenditure heads, what is the accounts, it will come to the particular. And then voucher number is there, LF, and then total amount paid, final. So the first transaction is there, received from head cashier. So here in particular we have to write to cash account, because cash is received from the head cashier, therefore in particular we have to write the cash account. Now if we are going to draw the journal entry, what will be the journal entry? Journal entry will be petty cash book account debit to cash account. If transaction is received from head cashier, now what will be the journal entry of that? The journal entry will be petty cash book account debit to cash account. So in particular we have to write the to cash account, and in final amount here amount received is there, so we have to write 1200 here, because 1200 is being received by the petty cashier from head cashier. So in the column amount received we have to write 1200. Then on 4th Jan there is transaction paid telephone charges. So in date column we have to write 4, and here we have to write by telephone charges account. And now this is the payment, and therefore 193 we have to put to the amount paid column, 193. So like that all the expenses we have to mention to the particular by telephone charges account, and then 7th Jan by mobile charges account, then 10th Jan by office files account, by tips to Pune account. The amount of all this, because these all are the payments. This payment telephone charges, this is the payment of rupees 193. So here in payment side we have to write 193. Mobile charges account there is a payment for 57, so we have to write 57 to the payment column. And then office file there is amount 125, so we have to put rupees 125 to the amount paid column. Then tip to Pune account rupees 40, this is payment, and therefore we have to put to the amount payment column. And then after that the transaction on 16th Jan. So transaction on 16th Jan there is the sale of old newspaper. Old newspaper को बेचा है, तो यहाँ पे 60 rupees आया है, पेमेंट नहीं हुआ है. So this 60 rupees we have to put to the first column, that is amount received column. And the remaining then 19, 22, 24, 27, 29, 30, all these transactions are payment transaction. So on 19th by Sweetie account, because the amount is being paid to the Sweetie, gave advance to the Sweetie, therefore here in particular we have to write by Sweetie account, and in amount column amount paid payment column we have to write 100. And the packing charges, this packing charges amount will also put to the 170 to the payment side. And for advertisement rupees 120, again we have to put to the payment side. Clearing charges also we have to put 60 rupees to the payment side. Donation 101 rupees to the payment side. And revenue stamp account we have to 60 rupees put to the amount payment side. And then finally after posting of all these expenditure, and then we have to come for the
tally of the petty cash book means at the time of tally now we have to find out the balance of petty cash book, how much balance is with the petty cashier. So what we have to do, first we have to take the amount, total amount of amount received. So here the total amount of amount received, that is 1260. कितना पैसा पेटी कैशियर को मिला, तो यहाँ पे मिलने का जो है सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन है। एक तो पहला ट्रांजेक्शन था 1200 रुपये का जो कि पेटी कैशियर को मिला था हेड कैशियर से, तो 1200 वो, और ये 60 रुपीज़ जो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा था 60 रुपीज़ का, तो ये दो ही रिसिप्ट है। तो टोटल रिसिप्ट जो पेटी कैशियर के पास में आया वो था 1260 रुपया। उसके बाद में फिर हमने यही टोटल 1260 रुपया पेमेंट साइड में लिखना है, सेम टोटल, और उसके बाद ये लिखने के बाद फिर हमको टोटल एक्सपेंडिचर जो टोटल अमाउंट पेड हुआ, टोटल पेमेंट का टोटल लेना है। टोटल पेमेंट आया 1026। तो ये टोटल पेमेंट जो है, ये टोटल पेमेंट में से टोटल रिसिप्ट जो ये 1260 है, ये टोटल रिसिप्ट को माइनस करेंगे। 1260 में 1026 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 234। तो ये पेटी कैशियर, ये पेटी कैश का बैलेंस है, ये पेटी कैशियर के पास में क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये 234 को यहाँ पे 31 जैन को बाय बैलेंस सीडी मंथ एंड को जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो है 234, और ये 234 को फिर ओपनिंग करना है। जैसे कि हम लोग कैश बुक में, मैं आपको बताया हूँ, कैश बुक क्लोज करते हैं जब, तो उसके बाद में उसका क्लोजिंग जो है ओपनिंग करके दिखाते हैं। वी हैव टू शो टू द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। वैसे यहाँ भी करना है, सिंपल कैश बुक में वैसा ही करना है, सिंपल कैश बुक में भी हमें वैसा ही करना है कि जो क्लोजिंग आएगा, ये क्लोजिंग 234 आया तो इसको ओपनिंग दिखाना है। तो फरवरी में फिर यहाँ पे लिखना है 2019 फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी। तो ये जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा दूसरे महीने का। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट हमने देखा, सिंपल पेटी कैश बुक कैसा होता है, कौन से ढंग से हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक को बनाते हैं। सिंपल पेटी कैश बुक एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक्चुअली सिंपल पेटी कैश बुक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये नॉलेज हमें होना चाहिए। इसमें अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर में एक्चुअली जो अकाउंट हेड्स है वो आएंगे, वो ध्यान देना है हमको। जो अकाउंट के लिए जिस चीज़ के लिए, जैसे ये अमाउंट है, ये आपका 193 टेलीफोन चार्जेस के लिए पेड हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय टेलीफोन चार्जेस। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें समझने के लिए हमको कि अगर रिसिप्ट है तो यहाँ पे 2 लगाना है। देखो ये पहला रिसिप्ट था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये 2 है क्योंकि हमें रिसिप्ट हुआ है। और उसके बाद में पेमेंट है तो सबको बाय लगाना है, पेमेंट की जगह पे सब पे बाय लगाना है। देखो ये 16 जैन का ट्रांजेक्शन, देखो 16 जैन को हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा था, इसके लिए यहाँ पे जो रिसिप्ट है 60 रुपये, यहाँ पे हमने 2 लगाया है। बाकी सभी पेमेंट को बाय करके ट्रीट करने, तो ये एक डिफरेंस है। और सिंपल है, ये रिसिप्ट है तो रिसिप्ट अमाउंट रिसीव्ड में लिखो, और जो एक्सपेंसेस हमने पेड किया है वो अमाउंट पेड के कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से हमें सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है। सिंपल पेटी कैश बुक में इतना ही कॉलम यूज में आता है। उसके बाद में दूसरा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक, जिसको हम लोग कॉलमर पेटी कैश बुक भी बोलते हैं, इसको भी 2 साइड होते हैं। जैसे हमने
सिंपल पेटी कैश बुक में देखा दो साइड था, एक रिसिप्ट साइड और दूसरा पेमेंट साइड। ऐसे इसमें भी दो साइड है। द वन साइड दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग द रिसिप्ट ऑफ कैश, सेम है जैसा कि हमने सिंपल पेटी कैश बुक में देखा। जो भी रिसिप्ट आएगा वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में। ऐसे ही एनालिटिकल पेटी कैश बुक में है, लेफ्ट साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो चाहे वो सिंपल पेटी कैश बुक। लेकिन जैसे हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में हमको सभी अकाउंट्स का जो हेड है, जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन को हमको अकाउंटिंग हेड में ट्रांसफर करना पड़ता है और वो सभी अकाउंटिंग हेड्स के लिए हमको अलग अलग पेमेंट कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है बिटवीन सिंपल कैश पेटी कैश बुक एंड कॉलमर पेटी कैश बुक। इन राइट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट, एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज मैनी सब कॉलम। यहाँ पे ये देखो जो मैंने अभी बताया आपको कि जो अकाउंटिंग हेड्स है वो सारे अकाउंटिंग हेड्स के लिए हमको कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हम लोगों ने एक फॉर्मेट देखा सिंपल पेटी कैश बुक का, तो उसमें टेलीफोन चार्जेस पेड किया था। तो टेलीफोन चार्जेस जो भी है उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। तो वो उसमें उसकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद में मोबाइल चार्जेस है, 7 तारीख का ट्रांजैक्शन था, मोबाइल चार्जेस के लिए पेड किया। तो मोबाइल चार्जेस के लिए एक्चुअली हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस जो छोटा मोटा 40, 50, 60, 100 रुपए का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस करके ट्रीट करते हैं। तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं हम उसको, उसके लिए एक अलग कॉलम बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी अलग अलग ट्रांजैक्शन है, अलग अलग नेचर के, अलग अलग अकाउंटिंग हेड में, वो सभी अलग अलग अकाउंटिंग हेड्स का यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में वो अकाउंटिंग हेड का नाम लिखते हैं। इसमें यही डिफरेंस है। मतलब सिंपल पेडी कैश बुक में सिर्फ अमाउंट पेमेंट का एक ही कॉलम था, लेकिन कॉलमर में ऐसा नहीं है। कॉलमर में हमको जितने भी अकाउंट हैं, वो ट्रांजैक्शन जिस भी किसी अकाउंट से रिलेटेड है, तो वो पर्टिकुलर कॉलम हमको वहां पे पेमेंट साइड में बनाना होगा उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, देन वी विल कम टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलमर पेटी कैश बुक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में मैं आपको बता दूं, जैसे ऑफिस के लिए पेपर खरीदा, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, वो सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। पोस्टेज, जो भी कुरियर एक्सपेंसेस है या जो भी पोस्टेज एंड जैसे किसी को टेलीग्राम भेजा और किसी को लेटर भेजा, तो जो भी वो एक्सपेंसेस है, जो पोस्टेज वाले एक्सपेंडिचर है, इट विल गो टू द पोस्टेज अकाउंट। कैरियर्स एंड कार्टेज, जो भी कैरियर्स है, जो फ्रेट है, वो सब कैरियर्स एंड कार्टेज अकाउंट को जाएगा। There is no hard and fast rule for number of columns in analytical petty cash book. Actually, ये जो बुक कीपिंग है ये सोशल साइंस है, दिस इज नॉट ए नेचुरल साइंस। ये मैथ्स के जैसे प्योर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे नहीं चलता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ जगह ऐसे है जहां पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्लियर दिया है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें आप जो सब कॉलम्स बनाएंगे, नंबर ऑफ सब कॉलम्स आपका ज्यादा भी हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने नंबर ऑफ सब कॉलम्स ज्यादा बनाए तो भी वो राइट होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, ledger column is prepared for making payment towards personal and real account. The petty cashier prepare a statement stating the summary of expenses paid and submit it to the chief cashier. Chief cashier means that is the head cashier. तो यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजेक्शन है
उस ट्रांजैक्शन के लिए आप सेपरेट कॉलम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं ये कॉलम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, या आप कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है जिसका रिकॉर्ड आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यू कैन पोस्ट इट टू द मिसलेनियस एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस में आप उसको क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ये जानना जरूरी है। व्हाट इज द इम्प्रेस सिस्टम? एक्चुअली इसमें मैं पहले आपको इसको कंक्लूड करके बता देता हूँ। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है पेटी कैशियर को। पेटी कैशियर को स्मॉल एक्सपेंसेस कितना होगा ड्यूरिंग 1 मंथ में, कितना बजट लगेगा उसको पेटी एक्सपेंसेस रिलीज करने के लिए, तो वो एक प्राइम फेशिया करके डिटेल्स जो है वो हेड कैशियर को दे देता है, जिसको हम एस्टिमेट बोलते हैं। तो वो एक एस्टिमेट जो देगा पेटी कैशियर हेड कैशियर को, तो हेड कैशियर उतना अमाउंट पेटी कैशियर को रिलीज कर देता है, और उसी अमाउंट में से उसने पेटी कैशियर ने उस अमाउंट को पेटी एक्सपेंसेस को रिलीज करता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, मेंटेनिंग पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। अंडर इम्प्रेस सिस्टम एस्टिमेट इज मेड, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक एस्टिमेशन देता है वो पेटी कैशियर। किसको देता है? चीफ कैशियर को, मतलब हेड कैशियर को। एस्टिमेट मतलब एक अंदाज, नॉर्मल बजट, उसको मंथ में, एक महीने में कितना स्मॉल एक्सपेंसेस रिलीज करना पड़ता है, उसका एक अंदाज फिगर, एक अंदाज अमाउंट वो चीफ कैशियर को देता है फॉर मेंटेनिंग द पेटी एक्सपेंसेस फॉर सर्टन पीरियड। सच अमाउंट इज पेड टू पेटी कैशियर, और वही अमाउंट जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को पेड करता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड he present the account of payment made by him to the head cashier, और फिर जो हर मंथ के एंड पे उसको जो भी उसने पेटी कैशियर ने एक्सपेंसेस रिलीज किए हैं, जो भी पेटी कैश बुक अकाउंट उसने तैयार किया है, वो पेमेंट का डिटेल्स जो है वो हेड कैशियर को देता है। एंड आफ्टर चेकिंग द अकाउंट बाय पेटी कैशियर विल बी गिवन ए सम इक्वल टू द अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय हिम, और जो भी अमाउंट एक्सपेंड हुआ है पेटी कैशियर को, वो अमाउंट उसको क्या करता है, रीइंबर्स करता है। नाउ द पेटी कैशियर विल स्टार्ट विद द सेम अमाउंट, और उसी अमाउंट से वो अपना जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करता है। दिस सिस्टम इज नोन एज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, और इस सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? इम्प्रेस ऑफ पेटी कैश बुक। अब यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स हैं, यहाँ पे फॉर्मेट आपको समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। यहां से स्टार्ट होता है हमारा जो कॉलम्स है। इसमें कॉलम्स पे आपको ध्यान देना है। मोस्टली आपको कॉलम्स जो है यहां से, मतलब अमाउंट रिसीव्ड जो पहला कॉलम होगा, उसके बाद में CBF बोलते हैं इसको, सेकेंड कॉलम को CBF। CBF का मतलब होता है कैश बुक फोलियो, और फिर उसके बाद तीसरा कॉलम है डेट, और फिर फोर्थ कॉलम है पर्टिकुलर, and then fifth column is the voucher number। इसमें वाउचर नंबर दिया रहता है। एक्चुअली वाउचर नंबर में हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका डिटेल हमको ट्रांजैक्शन में नहीं मिलता है। अगर ट्रांजैक्शन में इसका डिटेल दिया है, then we have to record the voucher number in this
column. Otherwise we have to leave this column as a blank, but we have to show this column. लेकिन हमको ये column show करना पड़ता है. उसके बाद में total amount. Total amount मतलब ये कौन सा amount है जो कि पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट दिखाना है. जैसे आपको दिखाना है, जैसे ये पेमेंट किसके लिए हुआ है, पोस्टेज के लिए हुआ है. तो ये पेमेंट अगर पोस्टेज यहाँ पे आपको लिखना है बाय पोस्टेज अकाउंट, ये जो डॉट डॉट है, मान लो ये ट्रांजेक्शन आपका पोस्टेज के लिए है तो यहाँ लिखना है आपको बाय पोस्टेज अकाउंट. फिर वो अमाउंट जितना खर्चा हुआ पोस्टेज के लिए वो आपको टोटल अमाउंट पेमेंट में ये दिखाना पड़ेगा. उसके बाद में फिर ये देखो पोस्टेज यहाँ पे दिया है कॉलम, ये पोस्टेज, ये पोस्टेज कॉलम में आपको ये अमाउंट दिखाना है. मतलब अमाउंट दो जगह लिखना है आपको. एक तो टोटल पेमेंट में पहले लिखना है, उसके बाद में सब कॉलम में लिखना है जो वहां पे जो आपने अकाउंट लिखा है उसका डिटेल लिखा है, पोस्टेज अकाउंट करके लिखा है, तो वो पोस्टेज में आपको ये अमाउंट लिखना है. जैसे उसके बाद में तीसरा देखेंगे आप, बाय, जैसे ये किसी को पेड किया, पेड टू सुनील, एग्जाम्पल बता रहा हूं. इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, अगर कोई भी अमाउंट पेटी कैशियर किसी पर्सनल अकाउंट को रिलीज करता है तो वो सीधा उसके लेजर में जाएगा. ये ध्यान देना है आपको, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है इसको, कि अगर कोई भी अमाउंट पेटी कैशियर किसी भी इंडिविजुअल को रिलीज करता है, किसी पर्सनल अकाउंट को रिलीज करता है, जैसे मैंने एक डमी ट्रांजेक्शन आपको बताया यहाँ पे, अमाउंट पेड टू सुनील, तो यहाँ पे लिखना है बाय सुनील अकाउंट. और उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट साइड में कॉलम, पेमेंट कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है. जैसे 100 रुपीज दिया तो यहाँ पे 100 रुपीज लिखेंगे. उसके बाद में उसको उसका जो एक सब लास्ट में लेजर अकाउंट करके सब कॉलम बनाएंगे. ये देखो यहाँ पे लेजर अकाउंट है ये. तो जो भी पर्सनल अकाउंट को जो भी रिलीज होगा वो आपको यहां दिखाना है, लेजर में दिखाना है. ये ध्यान देना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ पे आपका जो भी रिलेटेड अकाउंट्स होंगे, जो भी रिलेटेड अकाउंट्स होगा पर्टिकुलर में आपको लिखना है उसको, और उसके पे सब कॉलम में अकाउंट आपको लिखना है लाइन से. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो क्या क्या लिखा गया है, फॉर्मेट है. एक्चुअली ये फॉर्मेट बताया यहाँ पे आपको, एक डमी फॉर्मेट आपको प्रेजेंट किया है. पहले लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इसमें सभी जो पेपर एक्सपेंसेस हैं, जो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंडिचर्स है, expenses about the pen, pencil, eraser, paper, printers, like that, so it will come to the printing and stationery account. उसके बाद में पोस्टेज, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, all the postage expenses like postal charges and telegram charges, so all this will come to the postage account. और उसके बाद में कैरियज है, तो कैरियज में आपको जो भी कैरियज एक्सपेंसेस है वो कैरियज अकाउंट आपको अलग से दिखाना है यहाँ पे. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर कोई है तो आपको वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी अलग से दिखाना है यहाँ पे. मिसेलिनियस एक्सपेंसेस के बारे में समझ लो, जो जिसका हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं होता है, जिसका कोई वाउचर नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, जो वो सब हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, मिसेलिनियस एक्सपेंसेस. मतलब ये सन्ड्री एक्सपेंसेस करके हम इसको अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे, और उसमें वो अमाउंट डाल देते हैं. जैसे ऑफिस के लिए ब्रूम खरीदा तो इसमें आ जाएगा, वॉचमैन को टिप दिया वो आ जाएगा, वेटर को टिप दिया वो आ जाएगा इसके अंदर. तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है, जिसका पेमेंट वाउचर हमारे पास में बिल नहीं रहते हैं, जिसका हम लोग ऐसा सीधा बोल सकते हैं जिसका हमारे पास में बिल नहीं है. जैसे कहीं कोई ऑफिसर गया, रिक्शा फेयर लगा, रिक्शे से गया, रिक्शा फेयर लगा, तो रिक्शे का बिल उसके पास नहीं है, तो वो किस में आएगा, मिसेलेनियस एक्सपेंसेस में आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस में आएगा. इट विल कम टू द सन्ड्री एक्सपेंसेस. मतलब जिसका उसके पास में बिल नहीं है तो वो सब
जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन से अकाउंटिंग हेड में जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट हेड को जाएगा। उसके बाद में टेलीफोन चार्जेस अकाउंट है। टेलीफोन चार्जेस में सभी टेलीफोन जो एक्सपेंसेस है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस टेलीफोन का, टेलीफोन बिल के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब किस में आएंगे, टेलीफोन चार्जेस में आएंगे। उसके बाद में लेजर फोलियो LF, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं लेकिन कॉलम हमको बनाना है। और फिर लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो लेजर अकाउंट होगा। एक बात ध्यान से सुनना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ, जिस सीक्वेंस में ये लिखा है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी सीक्वेंस में लिखो। आपका सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, चलेगा। मतलब जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो आप टेलीफोन चार्जेस के जगह पे आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दिया और यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस लिख दिया, चलेगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टेज और कैरियर्स है, आपने पोस्टेज के जगह पे कैरियर्स लिख दिया और कैरियर्स के जगह पे पोस्टेज लिख दिया, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। इसके सीक्वेंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हमारा ट्रांजैक्शन का ये सीक्वेंस आता है, जैसे जैसे हमको ट्रांजैक्शन से पता लगता है कि इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग हेड है, इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग हेड है, उसी के हिसाब से फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सब कॉलम बनाने लगते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग ये सब कॉलम तैयार करते हैं। और लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लास्ट वाला है आपका लेजर अकाउंट, ये लेजर अकाउंट जो है सबसे लास्ट में आपको बनाना रहता है। ये बात ध्यान में देना है। इसमें आपको अगर आप ये लेजर अकाउंट बीच में कहीं बना देंगे तो इट प्ले अ रॉन्ग इम्प्रेशन इन टू द माइंड ऑफ एग्जामिनर। वैसे आपका प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्प्रेशन एग्जामिनर के माइंड में ज़रा रॉन्ग जाता है। इसके लिए आपको केयरफुल ये रखना है कि जो लेजर अकाउंट बनाएंगे आप सबसे लास्ट में बनाएंगे, ये ध्यान देना है। यू हैव टू पुट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली, लेजर अकाउंट। और बाकी ये जो अकाउंटिंग हेड्स हैं इसके सीक्वेंस में अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया है, इसके सीक्वेंस में अगर आपने कुछ भी बदलाव किया है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो चलेगा, इट्स ओके। क्योंकि अभी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि ये सोशल साइंस से रिलेटेड है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका सीक्वेंस बदलता है तो इट्स ओके, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टैली पे। टैली करते समय एक बात ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है और आपका जो टोटल रिसिप्ट है वो देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अमाउंट रिसीव्ड पे टोटल करना है और ये जो टोटल आया है आपका, ये वाला टोटल, यही सेम टोटल आपको यहाँ लिखना है, ये ध्यान देना है। मतलब टोटल ऑफ रिसीप्ट साइड 101% आपका जो रिसीप्ट साइड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपको ओडी का ये नहीं है, इसमें आपका 101% जो डेबिट बैलेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पेटी कैशियर के पास में जब अमाउंट है तो ही वो रिलीज करेगा, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो नॉर्मली जो डेबिट साइड का टोटल आएगा, जो रिसिप्ट साइड का टोटल आएगा, वही टोटल आपको पेमेंट साइड में भी लिखना है। और फिर आपको करना क्या है, ये जो रिसिप्ट साइड का टोटल है उस टोटल को यहाँ पे लिखना है। ये टोटल, ये देखो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर आपका, ये जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखना है। बाद में ये टोटल एक्सपेंडिचर को, ये टोटल एक्सपेंसेस को आपको टोटल रिसिप्ट से माइनस करना है। टोटल एक्सपेंसेस को टोटल रिसिप्ट से आपको माइनस करना है और उसमें माइनस करने के बाद में जो बैलेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और वो क्लोजिंग बैलेंस के लिए आपको यहां लिखना है बाय बैलेंस सीडी। और फिर वही बैलेंस जो है आपको दूसरे महीने में फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कंटिन्यू करना है, वो हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस।
So today we studied about the petty cash book, simple petty cash book and columnar petty cash book. In next lecture we will start to solve the problem.